Ignited Minds Tutorials has recently released a comprehensive series of videos covering the topic of electric field and charges for Class 12 Physics CBSE, Maharashtra State Board, and IIT/NEET, and various CET syllabus. The videos aim to provide a thorough understanding of these complex concepts through clear, concise explanations and problem walkthroughs. In addition to covering the basic principles, the series also includes previous year's questions, allowing students to practice and prepare for their exams effectively. The tutorials are designed to help students build a strong foundation in this important topic, ensuring they are well prepared to tackle any related questions that may come their way. Whether you are a student studying for board exams or preparing for competitive entrance exams like IIT and NET, these videos offer a valuable resource to aid in your studies. With the guidance of experienced educators, learners can gain a deeper insight into the subject and develop the skills necessary to excel in their academic pursuits. Overall, the series of videos from Ignited Minds Tutorials serves as a valuable, knowledge-based resource, providing a clear and comprehensive explanation of electric field and charges for students looking to enhance their understanding of the subject. भाई साहब अपन ओके, कंसिडर अ सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर. ये भाई साहब आपका एक सेमी सर्कुलर रिंग है. चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग. तो ये आपका सेमी सर्कुलर रिंग है और चार्ज क्यू इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी? क्यू बाई पाई आर ना. देखो पूरा सर्कमफरेंस कितना होता है? 2 पाई आर. तो आधा सर्कमफरेंस कितना होगा? पाई आर. ठीक है. सो क्यू विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट पाई आर. कंसिडर अ सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर. चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग. To find the net electric field due to the uniformly charged semicircular ring at its center, let us consider a small elemental charge dq on the x-axis and the angular width of the element dq is d theta. Let's say ये भाई साहब angular width है. ठीक है, समझ में आ रहा है? ये आपका angular width है d theta. ठीक है, okay. At the center, the electric field due to small elemental charge dq will be de as shown in the figure. तो इसका भाई साहब dq की वजह से let's say de electric field जनरेट हो रहा है. डी को अपन रिजॉल्व करेंगे. ये भाई साहब डी थीटा है. लेट्स से ये हो गया आपका थीटा. तो अगर ये थीटा है तो आपका यहाँ पे कौन सा थीटा हो जाएगा? देखो ओके, ये वाला आपका थीटा है. देखो तो ये वाला आपका थीटा हो जाएगा कि नहीं? तो ये डी ई है. तो ये कितना हो गया? डी ई कॉस थीटा. और ये वाला कितना हो जाएगा? डी ई साइन थीटा. दिस विल बी बेसिकली डी ई कॉस थीटा एंड दिस वन विल बी डी ई साइन थीटा. ठीक है, ओके. Similarly, let's consider another elemental charge dq on the same circular ring that resides at symmetrically opposite side to the same elemental charge dq considered earlier. Thus, at point P, okay, at point P, the electrical field due to new small elemental charge will be dq, and this electric field de can be resolved into two components. तो इसको भी अपन दो component में, ठीक है, resolve कर सकते हैं. Okay. For every elemental charge in the ring, there is a similar elemental charge in symmetrically opposite side of the ring. Hence, the net electric field on the x-axis is zero. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? देखो इसका यहाँ पे डी ई कॉस थीटा, यहाँ पे भी भाई साहब एक डी ई कॉस थीटा. तो ये आपका जीरो होता जाएगा. ठीक है, ओके. नाउ लेट द स्मॉल एलिमेंटल चार्ज ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग बी डी क्यू, दैट इज लैम्डा डी एक्स. लैम्डा डी एक्स, डी एक्स भाई साहब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? आर इंटू डी थीटा. देखो डी एक्स आपका ये जो लेंथ है dx, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? r इंटू थीटा. लेंथ इज इक्वल टू r थीटा. ठीक है, दैट विल बी r d थीटा. अगर नहीं समझ में आ रहा है अपन समझेंगे इसको. dx इज इक्वल टू r d थीटा. बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ dx, तो यहाँ पे dq कितना हो गया? लैम्डा dx. dq हो गया आपका लैम्डा r d थीटा. समझ में आ रहा है भाई साहब? यहाँ पे लैम्डा इंटू dx की जगह पे क्या हो गया? r d थीटा. ऑल्सो द लीनियर चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय q बाई पाई r. The small elemental electric field due to small elemental charge dq is given by de, that is k dq by r का स्क्वायर. ठीक है, k dq by r का स्क्वायर. ये हो गया आपका dq और ये हो गया आपका r. ठीक है, k dq by r का स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? de will be equal to k lambda r d theta upon r का स्क्वायर, k q by pi r का स्क्वायर d थीटा. ठीक है,
द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड along the x axis is given by Ex is equal to d cos theta, that will be equal to 0. The net electric field along the y axis given by dE sin theta. तो आपका ये तो आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे dE sin theta कितना हो जाएगा, q माइनस कॉस थीटा पाई बाई 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो माइनस, यहाँ पे 0 से लेकर पाई तक है, समझ में आ रहा है। देखो ये आपका क्या है, 0 से लेकर पाई तक, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, फ्रॉम 0 टू पाई, ठीक है। तो माइनस कॉस थीटा आया, ये 0 से लेकर पाई तक के क्यू पाई आर स्क्वायर माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0 टू 2 के क्यू बाई पाई आर का स्क्वायर। सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई दिस, ठीक है। चलिए इसको कर लेते हैं। अरमान बहुत गुस्से में है भाई साहब, चलो अरमान ए अरमान, ओके बच्चा पार्टी यहाँ पे देखते हैं। देखो ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है। सेमी सर्कुलर रिंग का लेंथ कितना हो जाएगा, देखो पूरे सर्कुलर रिंग का लेंथ कितना होता है, 2 पाई आर। यहाँ पे रेडियस भाई साहब इसका आर है, ठीक है, दिस रेडियस इज बेसिकली आर। तो इसका 2 पाई आर की जगह पे क्या हो जाएगा, पाई आर, ठीक है। लेट्स से आपका चार्ज क्यू, टोटल चार्ज जो है वो है क्यू, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट दिस, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना, क्यू बाई पाई आर। ये हो गया आपका चार्ज डेंसिटी, लेट्स से इसको अपन ने बोला लैम्डा, ठीक है। दिस इज द चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो एक स्मॉल डी क्यू है और ये जो डी क्यू है, देखो ये लेट्स से ये वाला जो लेंथ है वो डी एक्स है, ठीक है। और ये वाला क्या एंगल सबसेंड कर रहा है, थीटा। ये वाला है भाई साहब आपका थीटा, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, डी थीटा। इसके वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, डीई। तो डीई को अगर अपन रिजॉल्व करेंगे तो इस साइड में हो जाएगा डीई कॉस थीटा और इधर कितना हो जाएगा, डीई साइन थीटा। ये वाला डिस्टेंस आपका कितना है बच्चा पार्टी, आर, ठीक है। ओके तो आपका लैम्डा कितना हो गया, क्यू बाई पाई आर। दिस इज व्हाट, लीनियर चार्ज डेंसिटी। समझ में आ रहा है भाई साहब, दिस इज बेसिकली व्हाट, लीनियर चार्ज डेंसिटी। दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई लैम्डा। ओके, क्या लैम्डा को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। यहाँ पे स्मॉल एलिमेंटल चार्ज डी क्यू और इसका लेंथ कितना है, डी एक्स। चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा, ठीक है। चार्ज पर यूनिट लेंथ इज बेसिकली लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे चार्ज डी क्यू फॉर डी एक्स, तो डी क्यू बाई डी एक्स, क्या ये समझ में आ रहा है। तो लैम्डा की दोनों भी वैल्यूज हो गई, ठीक है। तो अपन भाई साहब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो ये हो गया आपका डी क्यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये। ओके तो मुझे बताओ यहाँ पे डी ई कितना हो जाएगा, दिस विल बी के डी क्यू बाई आर का स्क्वायर भाई साहब, है ना, के डी क्यू बाई आर का स्क्वायर। ओके इस डी क्यू की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, बोलो। इस डी क्यू की जगह पे, अरे यार अगर हम देखेंगे भाई साहब यहाँ पे के डी क्यू बाई आर का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो आपका डी क्यू कितना हो गया, देखो डी एक्स कितना हो जाएगा, आर डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। डी एक्स देखो डी क्यू कितना हो गया आपका, लैम्डा डी एक्स। भाई साहब आपका देखो यहाँ पे डी क्यू कितना आया, डी क्यू इस हिसाब से कितना आ जाएगा, डी क्यू विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एक्स, है कि नहीं। डी क्यू को अपन लैम्डा डी एक्स लिख सकते हैं। ओके व्हाट एल्स पीपल, हियर डी एक्स इज स्मॉल आर्क। अभी ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे 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 अगर आप कोई सर्किल लेते हो ना भाई साहब, अगर लेट से आपने कोई सर्किल लिया, ठीक है। इस सर्किल में क्या होता है कि भाई साहब आपने अगर कोई आर्क सबसेंड किया, तो लेट से ये आपका एक आर्क है, ठीक है। ये जो है आपका एक आर्क है। अरमान सोमत अरमान। ओके तो ये हो गया आपका एल, ठीक है। ये हो गया आपका आर, ये हो गया लेट से आपका थीटा। मुझे बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है। दैट इज आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इन रेडियंस, ठीक है। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इन रेडियंस, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इन रेडियंस। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है,
अभी यहां पे आओ भाई साहब, देखो यहां पे क्या है, dx है और ये क्या है, थीटा है और ये क्या है, r है। तो क्या लिख सकते हो बोलो, L इज इक्वल टू आर थीटा लिख सकते हो। तो यहां पे क्या लिख सकते हो, बोलिए क्या, कौन कौन इक्वल्स टू आर डी थीटा, dx, ठीक है। dx मतलब ये वाला dx लेंथ, तो ये dx आपका किसके बराबर हो जाएगा, आर डी थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर बी क्लियर, ओके। चलिए अभी हम यहाँ पे d को ये लिख सकते हैं, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया k डी क्यू बाई आर का स्क्वायर, ओके। इसके k मतलब समझ में आ रहा है ना, k आपका कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हो गया k, डी क्यू की जगह पे आप क्या लिखेंगे बोलो, पाई डी, पाई की लैम्डा है, ठीक है, लैम्डा डी एक्स, ठीक है, लैम्डा डी एक्स बाई आर का स्क्वायर। अभी आप डी एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, आर डी थीटा। तो ये हो गया आपका के लैम्डा आर डी थीटा अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है ये। और ये भाई साहब हो गया आपका कैंसिल, के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए तो आपका भाई साहब डी ई का वैल्यू कितना हो गया, दिस विल बी के लैम्डा डी थीटा बाई आर, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका डी ई का वैल्यू। अभी देखो यहां पे कुछ भी बोलना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि यहां पे डी ई के दो कंपोनेंट्स में अपन इसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है, ओके। तो डी को अपन ने दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया। जब आप किसी फोर्स को, ध्यान दो बच्चा पार्टी, अगर समझ लो कोई एक फोर्स है, देखो ये फोर्स, लेट्स से फोर्स है, कुछ भी है, कोई भी वेक्टर है, ये एक वेक्टर ए है, इसका लेट्स से ये थीटा हो गया, तो ये हो गया आपका ए कॉस थीटा और इधर हो गया आपका ए साइन थीटा। अगर आपने, ठीक है, अगर आपने इसमें रिजॉल्व कर लिया इसको ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा को, तो मेन वेक्टर को आप भूल सकते हैं, यू कैन एक्चुअली फॉरगेट अबाउट इट, ठीक है। अगर आपने ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा में इसको रिजॉल्व किया है, यू कैन एक्चुअली फॉरगेट अबाउट द मेन वेक्टर। ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी करेंगे, ये डी का हमको कुछ निकल तो नहीं रहा है, ये आप यहाँ पे फंस गए, तो इसको अपन रिजॉल्व करते हैं दो कंपोनेंट्स में, वो हो जाएंगे आपके क्या क्या बोलो, दिस विल बी वन विल बी व्हाट पीपलम, वन विल बी डी ई कॉस थीटा एंड व्हाट विल बी द अदर वन, डी ई साइन थीटा, ठीक है। अभी देखो अपन क्या करेंगे, सारे फोर्सेस को, तो रिजॉल्विंग इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, रिजॉल्विंग इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आप देखो यहां पे डी ई है, ये डी कॉस थीटा है। देखो इस पॉइंट का भाई साहब यहां पे कोई मौजूद रहेगा, ठीक है, उसका भी बराबर से भाई साहब यहां पे क्या एंगल बनता रहेगा, थीटा, है कि नहीं, उसका भी भाई साहब ऐसा ही बनता रहेगा कि नहीं, एकदम सेम, ठीक है। तो उसका भी भाई साहब इस तरह से एक एंगल बनता रहेगा थीटा, ठीक है, क्लियर है। तो इसका क्या हो जाएगा बोलो, ये जो यहां पे बन रहा है इसका इधर हो जाएगा एक डी कॉस थीटा। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे भी हो सकता है कोई dx हो और उसकी भी चार्ज क्या होगी, dq होगी, सेम लेंथ का ले लेंगे अगर हम, तो इसका जो यहां पे e बन रहा है de, तो उसका d cos थीटा किस तरफ होगा, इस तरफ होगा कि नहीं, d cos थीटा, और d sin थीटा इस तरफ होगा। तो ध्यान दो ये वाला d cos थीटा ये वाले d cos थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, समझ में आ रहा है ये। तो ऐसा हर एक पॉइंट में होगा, इसका जैसे एक पॉइंट है वैसा ही इसका भी एक ऐसा सिमिलर पॉइंट रहेगा, वैसा ही इस साइड में इसका भी एक सिमिलर पॉइंट रहेगा। तो अगर हम रिजॉल्व करें DE को, बेसिकली रिजॉल्व करें अलोंग द एक्स एक्सिस, व्हाट आर यू गोइंग टू गेट एज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन। अभी लेकिन देखो हर एक पॉइंट का d साइन थीटा किस तरफ आ रहा है, ये E आ रहा है, इधर आ रहा है। अभी इधर का देखो, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो मतलब d साइन थीटा आपका क्या होता जाएगा, ऐड होता जाएगा। तो अपने को क्या करना है, ये तो हो गया भाई साहब आपका 0, मतलब x एक्सिस, मतलब अपन इसको क्या बोल सकते हैं, E along the x axis is equal to 0, electric field along x axis is 0. Now let's calculate resolving electric field along y axis बच्चा पार्टी, ठीक है, y axis में रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी जब हम y axis में रिजॉल्व करते हैं बच्चा पार्टी, ठीक है, व्हाट डू वी गेट, अगर y axis में अपने को रिजॉल्व करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d sin थीटा का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, छोटे छोटे यूनिट्स आपके d sin थीटा के सबके ऐड होते जाएंगे, ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली de का इंटीग्रेशन, ठीक है। आप भाई साहब अगर e ऑफ y निकाल रहे हैं तो de का इंटीग्रेशन, ठीक है, दैट विल बी हाउ मच, आपका किधर गया भाई साहब, k लैम्डा d थीटा
बाई आर का इंटीग्रेशन, ठीक है। क्या बोल रहे हो? हाँ सॉरी साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। हाँ के बाहर, तेरे को बाहर निकालने का बहुत शौक है, ठीक है, चले भाई साहब, नहीं सही बोल रहा है भाई साहब। ओके चलिए भाई साहब, तो आपका यहाँ पे डी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अभी देखो यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन कर रहे हो, देखो डी ई है, तो डी ई है, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो, ठीक है। हाँ तो आपका यहाँ पे हो गया के लैम्डा साइन थीटा डी थीटा अपॉन आर, ठीक है। आर बी क्लियर? अभी जो चीज हमको देखनी है वो है थीटा की वैल्यू, ठीक है। थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बोलो? 0, यहां तक है। तो ये वाला एंगल कितना हो गया? यहां से इस एक्सिस से मापो, 0 1 2 3 4 ऐसा करते करते कहां तक गया भाई साहब? पाई तक गया। तो आपका यहाँ पे लिमिट बैठ जाएगा, ठीक है। लिमिट जैसे ही बैठाएंगे तो कांस्टेंट की आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि दिस विल बिकम अ केस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, 0 से लेकर पाई तक। क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर? ठीक है। डी ई को अगर आप छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स में ऐड करते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली आपका ई, ठीक है। सो ये आपका है भाई साहब ई वाई, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू दिस। चलिए भाई साहब यहाँ पे आपका ई वाई का वैल्यू आ गया, दैट इज ई, ठीक है, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? यहाँ पे बोलो, के को बाहर निकालोगे, के इज बेसिकली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा इज हाउ मच? क्यू बाई, लैम्डा की वैल्यू याद रखना, क्यू बाई 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर। तो के लैम्डा को हमने बाहर निकाला, आर को भी बाहर निकाला, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है भाई साहब। आर भी क्लियर? ओके। तो यहाँ पे साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा बिटवीन 0 टू पाई, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या दे देगा आपको? माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना? के लैम्डा बाई आर, ये हो गया आपका माइनस कॉस थीटा बिटवीन द लिमिट्स ऑफ 0 टू पाई। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब? के लैम्डा बाई आर माइनस कॉस ऑफ पाई माइनस कॉस ऑफ 0, ठीक है। क्लियर है? बताइए भाई साहब कॉस ऑफ पाई कितना हो जाएगा? कॉस ऑफ 180 इज हाउ मच? -1, वेरी गुड, ठीक है। आपका आर ये हो गया आपका -1 और कॉस ऑफ 0 इज, ठीक है, कॉस ऑफ 0 इज 1 ना, माइनस कॉस 0 हुआ, हाँ, लेकिन यार ये तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं कॉस पाई की वैल्यू -1 है। कौन सा? एक मिनट, मैंने कोई गड़बड़ किया है क्या भाई साहब? साइन ठीक है भाई साहब, क्या हो गया? cos पाई की वैल्यू -1 होती है और बाहर माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ करेक्ट, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे, ओके चलिए, तो इधर क्या हो जाएगा? देखो ये आपका होगा माइनस कॉस 0 ना, समझ में आ रहा है? माइनस कॉस पाई, माइनस तो इसका है ही भाई साहब, माइनस कॉस ऑफ 0, ठीक है। ओके, सो दिस विल बी हाउ मच? के लैम्डा बाई आर माइनस कॉस पाई कितना हो जाएगा आपका? माइनस कॉस पाई विल बी हाँ, तो देखो कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, तो माइनस कॉस पाई की वैल्यू हो जाएगी -1, दैट इज +1, सो दिस विल बी हाउ मच? 1। और यहाँ पे cos 0 की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 1, तो ये माइनस हो गया आपका प्लस, cos 0 का वैल्यू हो गया 1, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर। अभी k की वैल्यू डालना है डालो, वरना वैसे ही रहने दो। लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी q बाई 2 पाई, पाई आर होगा, सॉरी हाँ सेमी सर्किल है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा q बाई पाई आर, q बाई पाई आर, और इधर एक आर ऑलरेडी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया भाई साहब 2kq पाई आर का स्क्वायर, और यही रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि भाई साहब आपका x एक्सिस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 है, ठीक है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या होगा? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू x एक्सिस का स्क्वायर प्लस
वाई एक्सिस का स्क्वायर, ये आपका वाई एक्सिस का हो गया। तो एक्स एक्सिस का तो भाई साहब हमको मालूम है 0 हो गया है, ठीक है। अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस इट इज 0 का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर, दैट इज 2kb अपॉन पाई आर का स्क्वायर। सो दिस विल बी हाउ मच, सेम आ जाएगा भाई साहब 2kb अपॉन पाई आर का स्क्वायर। दिस विल बी द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, ठीक है। फॉर अ सेमी सर्कुलर रिंग दिस विल बी द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। 2k क्यू बाई पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आर कैसे हो गया, मेरा ये आया था ना 2k क्यू बाई, अच्छा इसको लैम्डा ले लिया है, मतलब अगर क्यू बाई पाई आर ले लेंगे तो लैम्डा भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके ओके ओके। अभी आप देखो यूनिफॉर्मली चार्ज क्वार्टर रिंग है, क्वार्टर, ठीक है। क्वार्टर मतलब भाई साहब 1/4, ठीक है। तो अभी आपने देखा, पहला तो आपने देखा एक अगर पूरा रिंग होगा तो सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, 0, ठीक है। नहीं 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 भाई साहब वो नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। और हम देखेंगे क्यों नहीं कर सकते। कितना आया तुम्हारा यहाँ पे, कितना है बोलो, 2k क्यू बाई पाई आर स्क्वायर। अभी देखो इसका कितना आया, √2k क्यू बाई पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। इट्स एब्सोल्युटली डिफरेंट, ठीक है भाई। वेक्टर्स है, वेक्टर्स में आप ऐसा नहीं कर सकते, स्केलर में आप कर सकते हो, क्योंकि वेक्टर में अगर ये स्केलर क्वांटिटी होती ना, जैसे वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, ये सब आपकी स्केलर क्वांटिटीज, यहाँ पे भाई साहब आप खेल सकते हो, अगर इसको दुगना कर दिया तो ये आधा हो जाएगा, ऐसा कर सकते हो। लेकिन वेक्टर्स में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वेक्टर्स में देखो, इसमें अगर ऐसा आप हाफ ले रहे हो तो क्या क्या हो जाएगा। देखो एक आपने डी क्यू चार्ज लिया एक्स, इसकी वजह से भाई साहब ई, अभी देखो यहाँ पे थीटा बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, पिछले वाले में क्या हो रहा था, डी कॉस थीटा और डी कॉस थीटा कैंसिल आउट हो रहे थे, अब नहीं होंगे भाई साहब, अब नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि यहां से लेकर यहां तक सारे के सारे डी कॉस थीटा भाई साहब ऐड होंगे, और सिमिलरली यहां से लेकर यहां तक सारे के सारे डी साइन थीटा भी ऐड होंगे, इसीलिए आपका भाई साहब एक रिजल्टेंट रह जाएगा, ठीक है। ओके, तो आप भाई साहब यहां पे क्या लिख सकते हो, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एक्स, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगेन 2q बाई, कैसे आया, 2 पाई आर, अच्छा अंदर 2 पाई आर होता है, उसको डिवाइड बाय 2 कर, तो 2 पाई आर हो गया सर, 2 पाई आर हो गया सर, उसका क्वार्टर को डिवाइड बाय 2 पाई आर, पाई आर बाई 2 होगा। देखो देखो पूरा सर्किल का कितना हो गया, सिंपल, पूरा सर्किल का 2 पाई आर, तो चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, q बाई 2 पाई आर। आधे सर्किल का q बाई पाई आर, और 1/4 का q पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2, तो यही 2 जो है तो ऊपर चला गया, देखो पाई आर बाई 2 था तो ऊपर चला गया, ठीक है। स्मॉल डाई इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज डी क्यू इज गिवन बाय, भाई साहब आपका डी कितना हो गया, के डी क्यू बाई आर का स्क्वायर, ठीक है। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं भाई साहब, डी क्यू की जगह पे वी कैन राइट इट व्हाट एज लैम्डा डी एक्स, तो इसको लैम्डा डी एक्स के हिसाब से लिखा भाई साहब, ठीक है, 2q डी थीटा बाई पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, डी एक्स इज इक्वल टू भाई आर डी थीटा है, ठीक है। ओके, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा भाई साहब, डी कॉस थीटा, ठीक है। 0 से लेकर पाई बाई 2, तो 0 से लेकर पाई बाई 2 भाई साहब कॉस थीटा हो गया, ठीक है। 2k यहाँ पे साइन थीटा आया इसका, 0 से लेकर पाई बाई 2 तक, ठीक है। तो आपका भाई आप आ गया ये ई एक्स का, फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी ई वाई का देखो अगर कितना आ जाएगा, डी आई साइन थीटा, ठीक है। ओके, तो मतलब आपका कितना आ गया, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा बिटवीन, तो ये आ गया आपका भाई साहब ये। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे, ई एक्स माइनस आई कैप क्यों होगा, बोलो बच्चा पार्टी, हाँ, एक्स एक्सिस पे किस तरफ है, किस तरफ है, इस तरफ, तो इसीलिए माइनस आई कैप। वाई एक्सिस पे नीचे की तरफ है तो नेगेटिव, तो माइनस जे कैप, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे हो गया माइनस आई कैप माइनस जे कैप, तो यहाँ पे हो गया 2kq, ये हो गया आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको भाई साहब ऐड करोगे अगर तो कितना आ जाएगा, देखो इसका 4kq और पाई आर स्क्वायर, तो आपका 2√2 आ जाएगा, 4 और 4 आ गया 8, 8 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 2√2। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर भी एक बार डिराइव करके देख लो भाई साहब, ये डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी आपको याद नहीं रहने वाला है, बट ऑल दैट यू डू इज प्रैक्टिस, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस में आपका ये दिमाग में बैठ जाएगा कि भाई साहब, क्योंकि इसी पे सवाल बनेंगे, ठीक है, इसी पे भाई साहब आपके सवाल बन जाएंगे। तो हमने क्या लिया हुआ है भाई साहब, सेमी सर्कुलर स्क्रीन लिया, ठीक है। यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है भाई साहब आपका Q, ठीक है, टोटल चार्ज कितना है Q डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट द 1/4 ऑफ अ रिंग, 1/4 ऑफ अ रिंग मतलब आपका कितना हो जाएगा, बोलो 1/4 ऑफ अ रिंग मतलब आपका कितना लेंथ हो गया, लेंथ विल बी हाउ मच, अरे बोला ना बोला,
2 पाई आर बाई इंटू 1/4, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, तो ये हो गया आपका पाई आर बाई 2। तो आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा बोलो? क्यू बाई पाई आर बाई 2। ठीक है, तो ये 2 ऊपर गया भाई साहब, 2 क्यू बाई पाई आर, ये हो गया आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये एक डी क्यू है भाई साहब फॉर अ वेरी स्मॉल लेंथ डी एक्स। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे लैम्डा कितना हो जाएगा? डी क्यू बाई डी एक्स। लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई? डी क्यू बाई डी एक्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? डी क्यू बाई डी एक्स हो गई, डी क्यू बाई डी एक्स। क्लियर है? ओके, और बताओ भाई साहब, अभी हमने एक और चीज लेना है क्या? एल इज इक्वल टू आर थीटा के हिसाब से, जैसे हमने पहले देखा ना, एल इज इक्वल टू आर थीटा के हिसाब से। तो आपका यहाँ पे लेंथ कितना है? डी एक्स इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा। तो ये 3 वैल्यूज निकल रहे हैं, इसी का भाई साहब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकालकर हमको डी की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ओके, अभी देखो यहाँ पे इसके वजह से डी हो रहा है, और जैसे मैंने आपको बोला, जब आपको भाई साहब हाथी पैर कुछ नहीं मिल रहा है भाई साहब, यहाँ पे डी है, तो इसको क्या करोगे? इसका कुछ भी नहीं मिल रहा है हमको, तो हम इसको रिजॉल्व करेंगे। यहाँ पे हो गया आपका डी कॉस थीटा, और यहाँ पे हो गया आपका डी साइन थीटा। इन दोनों के वैल्यूज को अगर आप फाइंड कर लोगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी, ना कि अकेले डी की वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, ओके, चलिए, तो भाई साहब डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डी बच्चा पार्टी? डी की वैल्यू के डी क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके, अलोंग एक्स। तो आप भाई साहब इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो। डी क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हो? डी क्यू की जगह पे किधर गया डी क्यू अपना? हाँ, डी ए। ठीक है, तो यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू क्या लिख सकते हैं अपन? लैम्डा डी एक्स। तो ये हो गया आपका लैम्डा डी एक्स अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, ओके, अभी भाई साहब हमको थीटा उटा लगाना है, तो ये डी एक्स को भी हटाना है, तो डी एक्स की जगह पे क्या? ये आर होगा, सॉरी, कैपिटल आर। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे? के लैम्डा डी एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे? आर डी थीटा बाई आर का स्क्वायर। तो ये चला गया, ये चला गया, ये कितना आ गया भाई साहब आपका? के लैम्डा डी थीटा बाई आर। समझ में आता है भाई साहब ये? ठीक है, क्लियर है? ओके, तो अभी अब किसको करेंगे? तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, बच्चा पार्टी कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस दैट विल बी इक्वल टू डी ई कॉस थीटा। इसके वजह से, सिर्फ इसके वजह से, ड्यू टू चार्ज डी क्यू, नहीं पूरा चार्ज डेंसिटी आपने लिया नहीं। ठीक है, तो पूरा का अगर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो? दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। और इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा मतलब क्या? कहां से कहां तक? देखो ये थीटा देखो 0 से लेकर कितना भाई साहब? पाई बाई 2। ठीक है, सो दिस विल बी 0 से लेकर भाई साहब आपका पाई बाई 2। चलिए इसको भाई साहब देखते हैं, यहाँ पे डी ई की वैल्यू कितनी आई है आपकी? के लैम्डा और कॉस थीटा यहाँ पे ठूसेंगे, कॉस थीटा, और ये हो गया आपका डी थीटा अपॉन 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 आर। दिस विल बी बिटवीन 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, के कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, ऑल ऑफ देम गो आउट। सो के लैम्डा और आर आपका बाहर आ गया। 0 से लेकर पाई बाई 2 बच्चा पार्टी कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे कितना आ जाएगा? साइन थीटा। ठीक है, तो के नहीं, माइनस नहीं आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, तो के लैम्डा बाई आर यहाँ पे कितना हो जाएगा? साइन थीटा दैट विल बी बिटवीन पाई बाई 2 टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका के लैम्डा बाई आर साइन पाई बाई 2 माइनस साइन ऑफ 0, साइन पाई बाई 2 माइनस साइन ऑफ 0। ठीक है, सो दैट विल बी के लैम्डा बाई आर साइन पाई बाई 2 कितना हो गया? 1 माइनस 0। सो ये हो गया आपका कितना? के लैम्डा बाई आर। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम के लैम्डा बाई आर। ओके, चलिए अभी हम भाई साहब अलोंग द, तो ये हो गया अलोंग द एक्स एक्सिस, तो ई एक्स की वैल्यू क्या हो गई? बोलो ना, बोलो भाई साहब। हाँ, के लैम्डा बाई आर माइनस आई कैप। समझ में आ रहा है? ये ई एक्स की वैल्यू हो गई। ठीक है, क्योंकि वो उस तरफ है भाई साहब। ठीक है, ओके, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग भाई साहब वाई एक्सिस क्या हो जाएगा बोलो? दिस विल बी डी ई साइन ऑफ थीटा
डी ई साइन ऑफ थीटा। क्लियर है, समझ में आ रही है? डी ई साइन थीटा मतलब बोलो कितना हो जाएगा यहाँ पे, डी ई साइन थीटा मतलब हो गया आपका भाई साहब डी ई कितना हो गया, के लैम्डा कितने के के लैम्डा आपका भाई साहब साइन ऑफ थीटा है, साइन थीटा डी थीटा अपॉन आर का स्क्वायर एंड हाँ सॉरी ठीक है। सो दिस विल बी आर, ठीक है। और ये किसके किसके बीच में है भाई साहब, 0 to पाई बाई 2, 0 to भाई साहब पाई बाई 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बोलो, दिस विल बी के लैम्डा बाई आर इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to पाई बाई 2 ऑफ साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। सो साइन थीटा का भाई साहब कितना आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा। तो के लैम्डा बाई आर माइनस कॉस थीटा बिटवीन 0 to पाई बाई 2, ठीक है। कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो, हाउ मच विल बी द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा बच्चा पार्टी। सो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी के लैम्डा बाई आर, ये हो गया आपका कितना, माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस माइनस कॉस ऑफ 0, ठीक है। सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच, के लैम्डा बाई आर माइनस कॉस पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, माइनस 0 प्लस 1, ठीक है। सो दैट विल बी हाउ मच, के लैम्डा बाई आर, ठीक है। अभी क्योंकि नीचे की तरफ है तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के लैम्डा बाई आर माइनस जे कैप। तो आपका अगर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, सो दैट विल बी हाउ मच, ई एक्स आई कैप, रुको ना बच्चा, ठीक है, ई वाई जे कैप, ठीक है, माइनस आई कैप और ये हो गया माइनस जे कैप, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, अगर हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर्स में रिप्रेजेंट किया तो ई एक्स प्लस ई वाई ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, के लैम्डा बाई आर माइनस आई कैप प्लस के लैम्डा बाई आर माइनस जे कैप, ये हो जाएगा आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अभी भाई साहब अगर आपको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, एक्स और वाई कंपोनेंट के स्क्वायर करके अंडर रूट कर दोगे, ठीक है। तो अगर आपको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है बच्चा पार्टी, सो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के लैम्डा बाई आर का भाई साहब स्क्वायर प्लस के लैम्डा बाई आर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2 के स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर। सो दिस विल बी हाउ मच, अंडर रूट 2, यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब आपका, के लैम्डा बाई आर, ठीक है। अभी यहाँ पे के की जगह पे तो हमने के लिखा, लैम्डा की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, 2q बाई पाई आर ना, 2q बाई पाई आर, तो 2q बाई पाई आर, और यहाँ पे एक आर ऑलरेडी मौजूद, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अंडर रूट 2, तो आपका कितना हो गया भाई साहब यहाँ पे, के पाई आर का स्क्वायर, ठीक है, के क्यू 2 अंडर रूट 2, ठीक है, के क्यू बाई पाई आर स्क्वायर 2 अंडर रूट 2, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो आपका डी आया है या ई आया है इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ये, ठीक है। अदरवाइज इट कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट्स लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब इसका क्या हो जाएगा, ये हो गया भाई साहब देखो डी, तो आपका इधर हो गया कितना भाई साहब, ये 2 आया है यार, अच्छा हाँ 2 क्योंकि लैम्डा को रिजॉल्व किया है, ठीक है, लैम्डा को रिजॉल्व किया, तो यहाँ पे अंडर रूट 2 के, तो 2 अंडर रूट 2 के क्यू बाई पाई आर स्क्वायर, ये अपना भी आया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपने इसको देखो यहाँ पे हमारा डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है ना, ठीक है, यहाँ पे लैम्डा लिया हुआ है इसीलिए, अगर हमने लैम्डा नहीं लिया, लैम्डा का वैल्यू ले लिया यहाँ पे, सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव आल्सो गॉट, ये क्या है आपका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का भाई साहब मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर आपको इसको भी लिखना है तो आप ई नेट क्या लिख सकते हो, लैम्डा को हटाओगे तो क्या आ जाएगा देखो, के और लैम्डा की वैल्यू क्या है 2q बाई पाई आर, ठीक है। तो ये हो गया 2kq बाई पाई आर, हाँ आर स्क्वायर हो जाएगा ना भाई साहब, पाई आर, ये हो गया माइनस आई कैप प्लस 2kq बाई पाई आर स्क्वायर माइनस जे कैप, ठीक है। ये सब कुछ भी आपको याद नहीं रहने वाला है, पॉसिबल ही नहीं है आपको याद रहे, ठीक है। लेकिन आपके डेरिवेशंस अगर आप समझ रहे हैं कि कैसे हम किसी भी पॉइंट पे
इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन अगर कर सकते हैं तो सारे आपके दो प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हैं आपका भाई साहब। एक प्रिंसिपल हो गया सुपर पोजिशन का और दूसरा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले का, विच इज व्हाट, के क्यू बाई आर स्क्वायर। दो चीजें आपकी अप्लाई हो रही है, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा में आप तो जो भी डेरिवेशन आपको करना है बच्चा पार्टी, जो भी डेरिवेशन करना है, ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है। डेरिवेशन में इस पूरे उसमें डेरिवेशन ही होता रहेगा आपका, ठीक है। सारे सवाल आप डेरिवेशन से ही करोगे, समझ में आ रहा है। यहाँ दूसरे चैप्टर्स में क्या होता है कि बच्चा आप डिराइव करते हो और उस डिराइव को अप्लाई करते हो, लेकिन यहाँ पे सवाल ही आपका डेरिवेशन से आगे बढ़ेगा, समझ में आ रहा है। दूसरे चैप्टर्स में आपने भाई साहब रोटेशनल डायनामिक्स में बोला कि भाई साहब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेरिकल रिंग इतना है, इसको आपने डिराइव किया, अब इसको आप अप्लाई करोगे, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप हर एक सवाल को डेरिवेशन से ही इन्वॉल्व करोगे, तो इसलिए डेरिवेशन में आपका पूरा इंपैक्ट होना चाहिए। डेरिवेशन में भाई साहब क्या क्या आपको देना है, पहला तो बात है भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। इलेक्ट्रिक फील्ड की भाई साहब सिंपल फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाई आर का स्क्वायर होता है या डी क्यू बाई जो भी है आर का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आप देखोगे तो इस फॉर्मूले में आपको क्या करना है, सबको एक टर्म में लाना है, कौन सा आपका वेरिएबल है उसको ही सिर्फ इंटीग्रेट करना है, बाकी कांस्टेंट को बाहर फेंकना है। तो अलग अलग तरीके और पैंतरे आपने अपनाए, क्या क्या है भाई साहब आपका, एक तो हो गया लैम्डा विच इज चार्ज डेंसिटी, ठीक है, और क्या है भाई साहब लैम्डा को अपन क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई एल। अभी ये एल जो है एक स्पीयर के लिए डिफरेंट, एक सेमी सर्कुलर स्पीयर के लिए डिफरेंट, ये सब डिफरेंट होगा भाई साहब, ठीक है। और लैम्डा को आप दूसरा क्या एक्सप्रेस कर सकते हो, डी क्यू बाई डी एक्स। इससे आपकी जो वेरिएबिलिटी है उसको एक को तो मार ही सकते हैं अपन, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, एक ये हो गया। और फिर देखेंगे भाई साहब आपका जैसे यहाँ पे आर्क था, तो आर्क के हिसाब से भाई साहब ये डी थीटा बन रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डी थीटा और लेट्स से आपका एल दैट इज डी एक्स इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब तमाम तिकड़म आपको लगाने पड़ेंगे, इन सब चीजों से एक एक करके सब्स्टिट्यूट करके फाइनली आप किस में आएंगे, इंटीग्रेशन में आएंगे, किसका, डीई का। अभी डीई का आप एक वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, डीई का एक वैल्यू निकालेंगे। इस वैल्यू के हिसाब से आप देखेंगे कि अगर आप आंसर तक पहुंच पा रहे वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आप भाई साहब इसको रिजॉल्व कर लो, डीई साइन थीटा और डीई कॉस थीटा, ठीक है, डीई कॉस थीटा। अगर आपको भाई साहब हाथी पैर कुछ नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे भाई साहब इंटीग्रेट करो इनका अलग अलग से, ठीक है। तो एक का इंटीग्रेशन आपको अलोंग द एक्स एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा, एक का इंटीग्रेशन आपको अलोंग द वाई एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा। अगर आपका भाई साहब एक जीरो होता है तो आपका सवाल आसान बन जाता है, अगर नहीं होता है तो जस्ट एज वी डिड इन दिस केस कि भाई साहब आपने इन दोनों को ऐड करके इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया, ठीक है। और आप इसको अगर एक्सप्रेस करना चाहते हो एज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इधर दिस वे और दिस वे आप एक्सप्रेस कर सकते हो। आपको बॉटम लाइन ये समझना है कि इनमें से कुछ भी आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन डेरिवेशन का बेसिक जो सिद्धांत है वो आप फॉलो करते जाइए, आपके लिए इट विल बी अ केक वॉक फॉर यू टू डिराइव एंड बेसिकली रीच द फाइनल कंक्लूजन। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी, ठीक है, ओके। इसमें तो हम पता नहीं कहाँ तक पहुंचे थे भाई साहब। कल देखो अगर आप लोग आ सकते हो तो, अगर जो